Hello and welcome to all the viewers of Nahar JBN Mahakumbh Fire Chat session. As you all know, Jito is a worldwide body of Jain businessmen, industrialists, knowledge workers, and professionals with 67 national chapters and 11 international chapters with more than 3 lakh families. Jito Professional Forum, JPF, what is called, is one of the flagship project of Jito. It's a unique platform to involve, network, and engage Jain professionals globally. Another landmark project of Jito is Jito Business Network, which primarily caters to the business community. JBN, with the objective of enable to engage for economic empowerment, is organizing this Nahar JBN Mahakumbh. It's a global virtual expo with sole agenda of providing a platform to business network for 400 plus exhibitors and 1 lakh plus expected visitors across 27 plus industry groups. I am Dr. Kailash Jain, National Convener for the Health for Jito Professional Forum, and I am going to take you through an important journey of deal making, the art and science behind it. And we have with us Mr. Amit Jain. Mr. Amit Jain is a COO and business leader at Mountaineer Oyo India Propco, which is a JV between Oyo and SoftBank Group. Prior to his role at Oyo, he has worked with big accounting firms, big bulge investment banks, mid-market investment funds, and family offices. He led many investment companies, namely GTI Capital and Elephant Capital, and other aggregating on overall other companies aggregating to $175 million. During this period, he has also advised the Gaurav Dalmia's and Mohit Barban's family offices. With his 21 plus years of experience, unique and diverse experience in private equity, venture capital, and investments, here he is to share his views on deal making. Amitji, so as the topic goes, deal making, basically I would like to know what does it mean? The audience would like to know what actually the deal making means. Firstly, thank you Kailashji for having me here. Thank you Jito and Sadar Jai Janins to all the viewers and the listeners for this call. So it's a very interesting question, Kailashji. You know, to start with, what is deal making, right? All day long, we read in newspapers, we hear in news that XYZ deals are happening, or that particular company or that particular investor struck a deal. So deal, to my mind, in very generic terms, is any exceptional trade, right? We all are businessmen. We all come from business communities. Either in our immediate generations or previous generations, right? So any deal, any trade which is exceptional in nature is called a deal. So a deal could be, you have bought or you have actually got an order which is bigger than what you normally have, right? That could be characterized as a deal. You could have raised debt which is more than normal. That could be characterized as a deal. Or you could have raised equity in your company or invested in someone else's business. That could be characterized as a deal. For today's conversation, I would just focus on the various aspects of equity deal making. We won't get into the debt deal making or the other aspects of trade or business deal making. Okay. Now, so grossly, deal making can be like into what kind of categories and how we can go about it? So Kailashji, deal making, if you just look from an equity perspective, right, there are 4 broad umbrellas for deal making, right? One umbrella is when you are buying somebody else's business, lock, stock and barrel, which means 100% ownership change, right? That's one part of deal making. Second part of deal making could be when you are selling your business, lock, stock and barrel to someone else, right? That's the second aspect of deal making. The third aspect of deal making could be when you are attracting investments, in your business, which are not majority investments. These are minority investments, or even if they are majority investments, they're not 100% investments. And the fourth situation is when you're actually investing in someone else's business, for a minority or a majority stake, which is not 100%. So these are the 4 broad aspects of deal making. Okay. So I think what we can do for the benefit of the audience, maybe we'll go one by one. As you said, now suppose if I want to buy a particular business, in total. So how do I, come up to a conclusion on what will be the ideal deal price, So can you just throw some light on that? No, absolutely.
So देखिए इसमें क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी डील अगर करना चाहें, you know, so there are two themes or two questions which you should always ask yourself, right? One is why and the other one is how, right? How is more or less common for all the four aspects of deal making which I articulated earlier, but why is could be different for the different aspects, right? तो अगर हम पहला एग्जांपल लें कि you want to buy someone else's business, right? So first you have to ask yourself why, you know, why do I even want to do this, right? So उसमें normally जो aspects आते हैं, जो strategic rationale आता है which answers the why are things like, you know, कि क्या मुझे ये acquisition करने से scale मिलता है, क्या मुझे more market share मिलता है, right? क्या मुझे अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्या मुझे ज्योग्राफिक एक्सपेंशन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट? क्या मुझे कस्टमर एक्विजिशन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है? जैसे अब ये कस्टमर एक्विजिशन में आपको बड़े स्पेसिफिकली एक एग्जांपल देता हूँ. देयर लॉट ऑफ सिचुएशंस वेयर आई वाज पर्सनली इन्वॉल्व्ड. हम अगर ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में होते हैं, राइट, तो हमारी लिस्टिंग होती है सब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास. सो लेट अस से मैं स्टीयरिंग व्हील के कंपोनेंट्स बनाता हूँ पैसेंजर कार्स के या हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के, राइट? तो मैं यू नो आई एम लिस्टेड विद लेट अस से होंडा कार्स. आई एम नॉट लिस्टेड विद Hyundai कार्स, ठीक है? बट देयर इज अ डिफरेंट वेंडर, you know, who has been supplying to Hyundai for 10 years, 20 years, etc., right? अब मुझे अपने आप को expand करना है, right? I have two options. Any business at any given point has two options: either to grow organically, which is build, or to grow inorganically, which is buy, right? And buy is the deal making aspect which we are discussing today. तो अब ये जो बिजनेस है, अब ये क्या कर सकता है? या तो ये कहे कि भाई ठीक है, मुझे यू नो Hyundai के लिए भी कंपोनेंट सप्लाई करने हैं. अब मैं यू नो आई गो टू Hyundai, आई लिस्ट माई सेल्फ एज अ वेंडर. उनका जो भी एक लीड टाइम होता है, साल का, 2 साल का, 6 महीने का, जो भी उनका एक लीड टाइम होता है, उस लीड टाइम में आई विल जस्ट गो थ्रू द रिगमरोल और उसके बाद मैं एज अ वेंडर एम्पैनल हो जाऊंगा, ठीक है? दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि नहीं यार, यू नो, दिस इज टू लॉन्ग, राइट? If there is a vendor who wants to sell out 100% of his business, right? तो मैं उसको खरीद लेता हूँ. उससे मुझे क्या मिलता है? मुझे Hyundai के कस्टमर मिल जाता है, राइट? मुझे एक प्लांट मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो जहाँ कहीं भी होगा, उसके साथ एक पूरी टीम मिल जाती है, यू नो. सो आई गेट अ फुल सेटअप, यू नो, इन वन सिंगल शॉट. बट बाय जो बिल्ड होता है वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, बट बाय इज अ वन शॉट प्रोसेस. आपने एक बार में बहुत सारी चीजें एक साथ ले ली. अगर इसी एग्जाम्पल को हम और एक्सपैंड करके देखें, यहाँ पे तो हमने माना कि वो होंडा को सप्लाई कर रहा था, उसको Hyundai एज अ कस्टमर चाहिए था, तो उसने एक्विजिशन कर ली, राइट? बट लेट अस से अभी वो सिर्फ सेफ्टी, वो स्टीयरिंग व्हील के कंपोनेंट्स दे रहा था, राइट? अब उसको इंजन कंपोनेंट्स भी देने हैं, राइट? तो अब सेम सिचुएशन, बाय वर्सेस बिल्ड. नाउ ही लुक्स आउट फॉर अ वेंडर, यू नो, हु सप्लाइज इंजन कंपोनेंट्स, मे बी टू होंडा, क्योंकि अब वो कस्टमर एक्विजिशन नहीं देख रहा है, वो प्रोडक्ट एक्सपेंशन देख रहा है. तो ही विल गो आउट इन द मार्केट एंड सर्च फॉर अ वेंडर, यू नो, हु ही कैन बाय टू गेट इनटू एन अदर टेरिटरी, राइट? अब इसको और आप एग्जांपल लें, अब तो खैर ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काफी, यू नो, इट्स नॉट अ लोकलाइज्ड इंडस्ट्री, बट अगर सपोज कीजिए इट्स अ लोकलाइज्ड इंडस्ट्री बिकॉज वी हैव हब्स अक्रॉस इंडिया. देयर इज अ हब इन नॉर्थ विच इज गुड़गांव, देयर इज अ हब इन पुणे विच इज द वेस्टर्न हब, एंड देन देयर इज अ हब इन चेन्नई फॉर ऑटो कंपोनेंट्स, राइट? तो अब मेरा क्या है कि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं नॉर्थ में. अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज चाहिए साउथ में, या मुझे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज चाहिए वेस्ट में, राइट? हाउ डू आई डू दैट? अगेन, मैं वहां जाके या तो प्लांट सेटअप करूं या किसी एग्जिस्टिंग वेंडर को खरीद लूं, राइट? तो हमने इस एग्जाम्पल में ये देखा कि deal making could be the why here could either be because of product expansion, either be for geographic expansion, or for customer acquisition, right? And ये सारी चीजें आपको क्या देती हैं? सारी चीजें आपको स्केल देती हैं, सारी चीजें आपको मार्केट शेयर देती हैं, राइट? तो ये करने से पहले, you know, the first question which anyone, whether he is buying, selling, investing, or want to attract investors, has to spend a lot of time
on why do I want to do this, and then the next steps will follow. Okay. बहुत अच्छा अमित जी, आपने बहुत ही एकदम सिंपल वे में और काफी गुड एग्जांपल्स देके आपने समझाया ताकि पीपल कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आर द थिंग्स दे शुड थिंक अबाउट बिफोर दे वांट टू बाय आउट समथिंग. अच्छा, लेट्स गो टू अनदर सिनेरियो. लाइक somebody is running a good business, but then they feel that there is nobody to take over in their family. अभी आगे maybe the children have diversified, they've gone into some professional aspects, and there's nobody else to who can continue with the business. तो अभी मुझे आज डिसाइड करना है कि मुझे ये बिजनेस बेचना है एंड आई वांट टू कम आउट ऑफ इट एज 100% एग्जिट. तो उसके लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड लुक इनटू कि वी गेट द वी कैन गुड स्ट्राइक अ गुड डील एंड able to come out of it at a very good price. So what are the aspects we should look into or how we should go about it? So इसमें अगेन कैलाश जी, जो इसमें सबसे पहली चीज है, अगेन अभी जो आपने एक सेल करने का जो हमारा सेकंड अम्ब्रेला था, जो शुरू में हमने एक सेकंड एस्पेक्ट ऑफ डील मेकिंग की बात करी थी आउट ऑफ द 4 एस्पेक्ट्स, तो उसमें व्हाई शुड वी सेल और व्हाई डू पीपल सेल बिजनेसेस, राइट? और इसमें मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ. इंडिया के अंदर सेलिंग बिजनेसेस इज नॉट अ वेरी टॉक्ड अबाउट सिचुएशन. अब तो फिर भी मार्केट काफी इवॉल्व हो गई है, लेकिन हम जब 20-25 साल पहले when I kind of entered this field, right, if you go to somebody and tell him or ask him कि sir would you like to sell your business, they would just throw you out of the door, right? Because nobody in India ever thought कि यार इस तरह का सिनेरियो हो सकता है कि यार आप अपना बिजनेस बेचो, because it's just you're emotionally attached to your business. You build your business for your future generations. आप कभी भी किसी भी सूरत में अपना बिजनेस बेचना नहीं चाहोगे, because this is how we have been brought up since the very beginning, right? Yeah. अभी भी इंडिया के अंदर selling businesses for if you for on an opportunistic basis. जब मैं opportunistic basis की बात करता हूँ कि भाई आपका बिजनेस से कोई इमोशनल लगाव नहीं है, आपने एक बिजनेस चला लिया, नाउ यू वांट टू डू समथिंग एल्स, और आपको लिक्विडिटी इसी बिजनेस को बेचकर आएगी, तो वो वाला जो एक अपॉर्चुनिस्टिक सेलिंग होती है वो अभी भी इंडिया में बहुत रैम्पेंट नहीं है, बिकॉज पीपल आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर बिजनेस. आप यूएस में जाएं, आप यूरोप में जाएं, राइट, वहां पे हर 3-4 साल में लोग बिजनेस बनाते हैं, बेच देते हैं, देन दे टेक अ ब्रेक, पार्टी, फिर 1-2 साल बाद फिर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, फ्रॉम द कैपिटल व्हिच दे हैव. तो बेसिकली दे आर नॉट अटैच्ड टू देयर बिजनेसेस, नॉर दे अज्यूम दैट दे आर बिल्डिंग बिजनेसेस फॉर देयर फ्यूचर जनरेशंस, राइट? Okay. अब इंडिया के अंदर ये चीजें बहुत चेंज हो रही हैं. जैसे मैं अपना आपको पर्सनल एग्जांपल दूं, माय मोस्ट ऑफ माय फैमिली इज इनटू बिजनेस, राइट? आई ब्रांच्ड आउट, राइट? आई वाज इन फैक्ट चैटिंग विद यू द अदर डे. आपका भी सिमिलर सिचुएशन है, same thing here. You came from a business background, but you branched out, right? But I have a younger brother who's taking care of my dad's business. You have similarly, you may have siblings who are taking care of, the family business, etc., etc. बट जब बिजनेस बेचने की बात आती है तो 3-4 जो पहले वाई हैं, दैट वाई वी शुड सेल बिजनेसेस और वाई डू पीपल कंसिडर सेलिंग बिजनेसेस. तो एक तो हमने अपॉर्चुनिस्टिक सेलिंग की बात करी, जो इंडिया में अभी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, बट यस, दिस इट्स गेनिंग एक्सेप्टेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली. सेकेंडली, सबसे बड़ा जो इश्यू होता है, जो आपने टच अपॉन किया था बिजनेसेस बेचने का, वो होता है सक्सेशन प्लानिंग और फैमिली सेटलमेंट. या तो सक्सेसर नहीं है, फादर ने बिजनेस सेटल करा, ओनली डॉटर है. अब जैसे मैं भी पीछे एक किन्हीं के संपर्क में आया, ही इज इनटू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उनका 150 करोड़ का बिजनेस है, बट ही हैज जस्ट 1 डॉटर, राइट? मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्योंकि सन नहीं है इसलिए एक सक्सेशन इशू है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेल एक्सेप्टेड इन ट्रेड टुडे कि अगर आपकी डॉटर इंटरेस्टेड है, केपेबल हैं, द बिजनेस कैन वेरी वेल ट्रांसफर टू हिम एंड यू डू नॉट हैव सक्सेशन प्लानिंग इशूज, राइट? But इस सिचुएशन में his daughter is not interested in taking over or running his business, right? So he is only left with the option of finding the right buyer for his business, so that जो भी liquidity generate होती है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए रख सके, right? एक दूसरा सिचुएशन होता है, some situation which is very close to my family, where कुछ ब्रदर्स ने आपस में बिजनेस स्टार्ट किया, right? Over a period of time, next generation joins the business. उनमें फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देयर आर टू मेनी ब्रॉथ्स इन द सेम किचन, राइट? सो और कुक्स इन द सेम किचन हु आर स्पॉइलिंग द ब्रॉथ नाउ. तो
उसमें आपके डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, फील्डम के डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, कौन क्या कंट्रोल करेगा, लोगों की डिसीजन मेकिंग्स मैच नहीं करती, तो यू हैव अ सिचुएशन विद इज अ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो आपको उसको सेटल करना है। अब वो सेटल कैसे हो सकता है कि समवन वांट्स, या तो बिजनेसेस इतने बड़े हों कि आप बिजनेसेस को डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूट करके सबको दे सकें, या आप यही आपके पास ऑप्शन रह जाती है कि बिजनेस बेच दीजिए, जो भी लिक्विडिटी आएगी उसको बराबर में बांट लीजिए। सो दीज आर टू मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स of people looking to sell businesses in India. One is family settlement. Second is succession planning, which you touched upon. Second, जो बहुत relevance पकड़ रहा है इंडिया के अंदर, that is business attractiveness खत्म हो गई है। business attractiveness दिख नहीं रही है हमें, right? So कोई entrepreneur है, वो 20-25 साल से एक business कर रहा है, he had next generation joins the business, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन ये देखते हैं यार कि फादर ने या जो भी हमारी अर्ली जनरेशन थी वो जहां तक ला सकती थी बिजनेस को ले आई हैं, इस पॉइंट के बियॉन्ड इस बिजनेस को और ग्रो करना मुश्किल है, क्योंकि द मार्केट इज एक्चुअली गोइंग इनटू वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, या ये प्रोडक्ट लाइन ग्लोबलाइज हो गई है, इसमें आप डोमेस्टिक जिस स्केल पर आप हो वो रहकर बात बन नहीं सकती है। सो दे वांट टू ब्रांच आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। सो वो फिर बिजनेस बेच देते हैं कि भाई लिक्विडिटी आएगी, फिर इससे हम कुछ और नया शुरू करेंगे, right? Third situation, which is also very common in India, is the liquidity crunch. और ये globally सभी के लिए common है कि आपको business grow करने के लिए पैसा चाहिए, आप बहुत ज़्यादा leveraged हो, आपको ना तो debt मिल रहा है ना equity मिल रही है, आप you're not able to meet your ends, employees की salaries देनी है, सरकार की statutory dues देने हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, एंड यू जस्ट थिंक यार मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, इट्स बेटर टू सेल द बिजनेस, लेट समवन एल्स रन इट एंड आई जस्ट वांट टू स्टे आउट ऑफ इट। सो ये 3-4 सिचुएशंस होती हैं विच ट्रिगर सेल आउट ऑफ बिजनेसेस, राइट? जो आपने सवाल पूछा था हाउ, आई विल कम टू द हाउ लेटर, बिकॉज हाउ फॉर ऑल द 4 एस्पेक्ट्स इज मोर और लेस कॉमन। मुझे खरीदना है तो उसका मैं कैसे खरीद सकता हूँ, मुझे बेचना है तो मैं कैसे बेच सकता हूँ, मुझे किसी में इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मुझे कोई इन्वेस्टर लेकर आना है अपने बिजनेस में तो मैं कैसे ला सकता हूँ। इनका हाउ सबका मोर और लेस कॉमन है, सो मैं उस पे आई विल टच अपॉन दैट अ लिटिल लेटर। ओके, तो अभी जो आपने जो वेरियस एग्जाम मतलब सिचुएशंस बोला कि क्यों लोग बेचते हैं अपना बिजनेस, तो जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स आई थॉट व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर Thyrocare, for Mr. Velumani to come out of Thyrocare? Any among these listed entities which you said? देखिए, I think it's a when I must say that he's someone who is a real visionary, right? And उन्होंने ये चीज रियलाइज कर ली कि where the market is going to go in future, right? Market कहाँ जा रही है, there are a lot of tech enablement which is going to come into the market, right? He has kind of played his innings well, right? It's time for him to kind of do something else in life, there could be other interests, etc etc. दूसरी चीज क्या है कि अब उनके पास भी सेम सिचुएशन थी कि या तो मैं बाय करूं या बिल्ड करूं, सो आइदर टू ग्रो आई बिल्ड कैपेबिलिटीज which are सराउंडिंग माय एरिया ऑफ कोर कॉम्पिटेंस। तो मैंने जैसे एक एस्पेक्ट मेरा आपसे शेयर करना रह गया शुरू में कि लोग क्यों खरीदते हैं, व्हाई डू पीपल बाय, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि साहब देखिए मैं क्लॉथ बनाता हूँ, अब मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर को खरीद लेता हूँ, तो मेरा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। ओके, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया कि मैं गारमेंट बनाता हूँ, मैंने क्लॉथ वाले को खरीद लिया, किसी को जो क्लॉथ मिल्स होती है उनको खरीद लिया, तो मेरी बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गई, राइट? तो क्योंकि बिजनेस हर टाइम क्या है, बिजनेस हर टाइम इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज। वो हर टाइम ये सोच रहा है कि मैं ग्रो कैसे करूं, मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न कैसे कमाऊं। दीज आर द 3-4 क्वेश्चंस व्हिच अ बिजनेसमैन इज continuously grappling with. अगर कोई बिजनेसमैन इन 3-4 सवालों से ग्रैपल नहीं कर रहा है, so he in any case is in for a tough time, right? So we may think that, खासकर हमारे ट्रेड में भी अगर आप देखेंगे, we may think कि लोग 11 बजे दुकान पे जा रहे हैं, 8 बजे वापस आ रहे हैं, right? But that is only their physical presence, right?
वो 24 घंटे सिर्फ अपने व्यापार के बारे में सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, पैसा कहाँ से लाऊं, मुनाफा कैसे ज्यादा कमा सकता हूं, खर्चे कैसे कम कर सकता हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकता हूं. These are the 5 questions which any businessman, shopkeeper, trader sleeps with, right? Okay. तो आज थायरोकेयर वाले एग्जांपल में भी उनके पास यही सवाल होंगे कि what next, what should I do now, right? And as I said, selling a business is probably one of the most difficult decisions, you know, that one can take. आप अपना एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे तो आप इतने $1 million, $1 billion की डील कर रहे हैं. अगर आपसे कोई ये कहे कि आप अपनी गाड़ी बेच दीजिए जो शायद 10-20 लाख रुपए की होगी, जो आप चला चुके हैं, या आप जो आपके पास एक मकान आपने लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, उसे बेच दीजिए, आपके मन में कितने सवाल आते हैं. अरे यार, प्राइस बढ़ गया तो मुझे कोई खास ऐसी जरूरत तो नहीं है, शायद देख लेते हैं, 4 ब्रोकर से बात कर लेते हैं, ये सही प्राइस है क्या, राइट? तो जब उतने छोटे डिसीजंस लेने के लिए आपके मन में इतनी दुविधा होती है, you are compelled to think so much. You think about big entrepreneurs, right, who sell their businesses, you know, where they have give their blood and sweat over last 40 years. वो एक blink of eye में अपना business बेच देते हैं, right? So I think इसके लिए भी business बेचने के लिए भी ना बहुत solid vision चाहिए. जिस तरह से business बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए vision चाहिए, business बेचने के लिए भी vision चाहिए. You need to know, you know, मैं क्यों बेचना चाह रहा हूँ, और is it the right time to exit? Because this is not a decision which you can reverse. आपने एक बार बेच दिया, you have to live with that decision forever. That's true. तो आई एम श्योर जब उन्होंने थायरोकेयर बेचा या उसके बारे में उन्होंने सोचा, तो उन्होंने ये सारे एस्पेक्ट्स बिल्कुल अच्छे से स्टडी करे होंगे कि यार इस बिजनेस को मैं ग्रो जरूर कर सकता हूँ, लेकिन द पेस ऑफ ग्रोथ, यू नो, विल बी, देयर इज अ लॉन्ग रोड अहेड ऑफ मी, राइट? उसके लिए मुझे वापस से कैपिटल रेस करनी पड़ेगी, वापस से और मेहनत करनी पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. आज मार्केट्स के अंदर इक्विटी अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है, यू नो, and thanks to the ecosystem, right? And this is where ecosystem plays a very important role, कैलाश जी. आप ये नहीं सुनेंगे कि अफगानिस्तान में यू नो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, सॉफ्ट बैंक जाके वहां पे पैसा लगा रहा है, या यू नो द बिगेस्ट ब्लैकस्टोन कार्लाइल जाके पैसा लगा रहा है, बिकॉज द मार्केट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरगेट यू नो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, राइट? वहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी कम होती हैं, बिकॉज सबको एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है कि यार हमने आज इन्वेस्टमेंट कर दी, कल को यू नो कुछ वहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क हो गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स बचेंगी कि नहीं बचेंगी, राइट? सो किसी भी मार्केट में या कंट्री में ये कि कंड्यूसिव माहौल बनाना, राइट, उसके लिए कंट्री की जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं, गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, आई थिंक उसको भी इतना ही श्रेय जाता है जितना श्रेय यू नो दूसरे एस्पेक्ट्स को जाता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो गए जो बेच रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो गए जो खरीद रहे हैं, चाहे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. Deal making in 70s or 80s could not have been imagined, right? There were hardly any deals which India was witnessing. 91 के बाद जब लिबरलाइजेशन होनी शुरू हुई, you know, हमारी फॉरेन पॉलिसीज की, उसके बाद इस तरह के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स आने शुरू हुए, बाहर के लोग, अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टर्स आने शुरू हुए, राइट? आज यू हैव मल्टीपल यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, मल्टीपल डेकाकॉर्न्स इन इंडिया, राइट? ये सब एक्सटर्नल कैपिटल से ही पॉसिबल हुआ है. और एक्सटर्नल कैपिटल क्यों आई है? बिकॉज द पॉलिसी एनवायरनमेंट इज सच दैट पीपल फील कंफर्टेबल इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया. राइट, ओके. सो अमित जी, तो ये तो दोनों मेजर एंगल से बात हो गई कि वन एस्पेक्ट ऑफ बाइंग द एंटायर बिजनेस एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटली सेलिंग. So when we want to do a partial, you know, like partial investment, or we want somebody else to invest partially, you know, taking some amount of stake into our business. So उसमें कुछ particular tips हो तो बताइए कि क्या point से हम लोग किसी को हमको अगर किसी में invest करना है, या फिर अगर कोई investor को attract करना है, तो how do we do that? देखिए, जो ये पार्शियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कैलाश जी, 2 तरीके की होती हैं. एक होती हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, राइट, और एक होती है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स. स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने के अलावा भी कोई ऑब्जेक्टिव हो, राइट? आपने प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ये बहुत आप अखबार में नाम सुनते होंगे कि यू नो इस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इतना % स्टेक लिया, इतनी वैल्यूएशन दी.
ये VC इन्वेस्टर ने इतना % स्टेक लेकर इतनी पैसा दिया कंपनी को, इतने पे वैल्यू किया। तो ये जो 2 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टे इन द कंपनी, हेल्प द बिजनेस ग्रो, और 5, 6, 7 साल 10 साल बाद अपने पैसे को वापस लेके चले जाएं ताकि दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें, राइट। Okay. So they do not have a this is a very well accepted business model, क्योंकि बिजनेस को ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत होती है। they have provided risk capital। आपने देखा होगा लॉस मेकिंग बिजनेसेस, ये जितने अभी जोमेटो का IPO है, जोमेटो आज तक लॉस मेकिंग है, राइट। नो बैंक विल टच जोमेटो टू इन्वेस्ट बिकॉज देयर इज नो विजिबिलिटी कि पैसा वापस कैसे होगा, राइट। तो इतने बड़े बिजनेसेस बन कैसे जाते हैं? वो इसलिए बन जाते हैं बिकॉज देयर आर इन्वेस्टर्स हु हैव फेथ इन द एंटरप्रेन्योर और द फाउंडर, दे हैव फेथ इन द बिजनेस मॉडल, they have faith in the market opportunity, and they support the business come what may। आप जितनी भी न्यू एज कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं, पेटीएम हो गई, ओयो हो गई, ओला हो गई, जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, ये कंपनीज कहाँ थी? these are all companies which have came in last 10 years, right? Correct. और आज जिन वैल्यूएशंस पे ये कंपनी पहुंची हैं, उन वैल्यूएशंस में शायद जो कंपनीज 50-50, 60-60 साल से धंधा कर रही हैं इंडिया के अंदर, दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच देयर। वो कैसे संभव हुआ? वो ऐसे संभव हुआ कि उन्हें वो पूल ऑफ कैपिटल मिला, जो पूल ऑफ कैपिटल आज से 20 साल पहले अवेलेबल नहीं था इंडियन मार्केट में, राइट। एंड मैं वापस से सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ कि वो पूल ऑफ कैपिटल क्यों आया इंडिया के अंदर? क्योंकि हमारे कंट्री ने एक ये कॉन्फिडेंस दिया बाहर के इन्वेस्टर्स को कि आप यहाँ पैसा लगाएं, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, आप आराम से पैसा ला सकते हैं, आप आराम से पैसा ले जा सकते हैं, सरकार की तरफ से कोई चेंज इन पॉलिसीज नहीं होगा। इफ यू टेक चाइना's एग्जांपल टुडे, चाइना इज बीटिंग देयर स्टार्टअप्स लाइक हेल बिकॉज वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग काफी चेंज हो रही है वहां पर, राइट। तो कोई भी एनवायरनमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप पॉलिसीज को चेंज कर दें जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूट जाए। Okay. तो आज अगर मैं इसका भी जो हाव है कि अगर मुझे अपनी बिजनेस में इन्वेस्टर्स लेकर आने हैं, उनको मैं कैसे ला सकता हूं, ये भी मैं हाव में कवर करूंगा अभी आपको, और मे बी नेक्स्ट 5 मिनट्स। बट सबसे पहला सवाल ये समझने का, वाई मुझे एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यू आर अ डॉक्टर, राइट। आप सपोज कीजिए इफ यू आर रनिंग अ पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी चेन, राइट। आपको अब आपको यार मेरे पास मुझे कैपिटल चाहिए, हाउ डू आई अरेंज कैपिटल, राइट। ट्रेडिशनल मींस ऑफ कैपिटल क्या है? खुद की कंट्रीब्यूशन व्हिच इज सेल्फ कैपिटल। कैलाश, आई थिंक योर कैमरा गॉट स्विच्ड ऑफ, so I think there was a call coming in, sorry. Okay, Yeah. so either own capital, अपनी कैपिटल से ग्रो करता हूँ, या फैमिली एंड फ्रेंड्स की कैपिटल से ग्रो करता हूँ, या बैंक्स के पास जाता हूँ लोन लेने के लिए, या मैं इन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से वेंचर कैपिटल फंड्स के पास जाता हूँ कि यार आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, मुझे कैपिटल दीजिए, राइट। तो मेरे बिजनेस को वैल्यू कीजिए, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ जो भी मेरी वैल्यू है, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, आप 10% स्टेक ले लीजिए बिजनेस में, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन इसके अलावा there are a lot of reasons why companies or founders go for third party capital। एक तो कैपिटल का तो बहुत कॉमन रीजन है, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, राइट। अब जैसे जैसे कंपनीज बड़ी होती हैं तो ओनरशिप और मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, बिकॉज ओनर कैन नॉट रिमेन इन्वॉल्व इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। उनके लिए प्रोडक्शन मैनेजर कोई अलग होगा, CFO कोई अलग होगा, मार्केटिंग के लिए कोई हेड मार्केटिंग होगा, IT के लिए कोई होगा। तो क्या होता है कि ओनर नाउ बिकॉज ही वांट्स टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल्स, द गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ताकि बिजनेस सही दिशा में जा रहा है, बिजनेस में कहीं लीकेज वगैरह नहीं है, उसके लिए भी प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स का आना बड़ा हेल्पफुल रहता है बिजनेस के अंदर, बिकॉज वो ये सब प्रैक्टिसेस को बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर, right? So an owner actually gets someone with him, who is his partner, जो उसको कैपिटल भी दे रहा है, कैपिटल के साथ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ला रहा है, बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस ला रहा है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहता है कि लोग क्यों इन्वेस्टर्स को लाते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर। थर्ड रीजन क्या होता है कि वन इज लोनली एट द टॉप।
आप कॉर्पोरेट लैडर में जितना ऊपर जाएंगे, you will feel lonely, right? Because there can be only one CEO, right? There can be 4 VPs, but CEO तो एक ही होगा बिजनेस में, so you are very lonely at the top. तो आपको एक साउंडिंग बोर्ड चाहिए कि यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए या ये इस नई मार्केट में जाया जाए। तो अब वो कौन है आपके लिए साउंडिंग बोर्ड, जिसका इंटरेस्ट आपके बराबर का ही हो, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि बिजनेस आगे बढ़े, एक इक्विटी पार्टनर भी यही चाहेगा बिजनेस आगे बढ़े। सो एक प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स एक्ट्स एज अ साउंडिंग बोर्ड फॉर यू। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव रहता है इन्वेस्टर्स को लेकर आना बिजनेस में, कि आप टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाते हैं, राइट? आज जैसे मैं अमित जैन एंड कंपनी खोलूं, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग शायद मेरे साथ काम कर लेंगे, बट देन आई हैव माय ओन लिमिटेशंस कि मेरा नेटवर्क कितना बड़ा होगा, राइट? बट अगर कोई ग्लोबल इन्वेस्टर है, ब्लैकस्टोन है, कार्लाइल है, वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो टैलेंट पूल को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई इस कंपनी में ब्लैकस्टोन ने इन्वेस्ट किया है या कार्लाइल ने इन्वेस्ट किया, सॉफ्टबैंक ने इन्वेस्ट किया, तो इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, इस कंपनी की गवर्नेंस अच्छी है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस में लाने के लिए। ओके, चलिए। सो अभी एक और चीज व्हाट आई वाज थिंकिंग, जो करंट सिनेरियो है पिछले 150 साल से, उसमें एक स्टैंडिंग एग्जांपल था। सो आई थॉट आई we all know कि COVID has really affected many industries. One such aspect is definitely hotel industry. So recently, I mean, I just wanted to discuss upon, like in the heart of a city there was one 4-star hotel which we know that it wasn't doing well for the last 1.5 years. So agar if I want to take over that completely, what are the aspects that I should look into? What is going to be the future prospect, and whether should I really go for it? Because I know it was doing very well say a year before, but now for the last 1.5 years, obviously things have not gone right because of the pandemic. The occupancy rates have come down so significantly that the hotel is not doing well, and he is almost at the verge of selling it out. So how can we proceed on that? You are into hotel industry, so probably you will be able to guide me better. So बताइए सर। नहीं, बड़ा रेलेवेंट सवाल है, और हम तो सर ये ऐसी सिचुएशंस रोज देखते हैं, बिकॉज वी आर बाइंग इनटू होटल्स, मिड स्केल एंड अपस्केल होटल्स। ये प्लेटफॉर्म जो ओयो और सॉफ्टबैंक का जो जेवी है, ये इसीलिए है कि हम मिड स्केल और अपस्केल होटल्स खरीद सकें अक्रॉस इंडिया। तो इसमें अब जो आपका सवाल है, मुझे बताएं पहले कि ये आप एज अ बायर पूछ रहे हैं, एज अ सेलर पूछ रहे हैं? एज अ बायर। एज अ बायर पूछ। तो अब मैं ये I know that hotel. I know it is there in the heart of the city, and I know very well that it was doing very well, extremely well. And for the last 1.5 years, yes, of course, but it's not an international chain. I know international chains somehow they manage to come, but it's a local Indian person who has started that hotel, and now it is not doing well. It was by one of our Jain community person only. So अब उसको कैसे टेक ओवर कर सकते हैं? देखिए, इसमें ना अगेन आप जब इसका बाय देख लेते हैं, एज अ बायर मुझे ये क्यों खरीदना चाहिए टोटल का। अगर मेरा पर्सपेक्टिव केवल ये है कि भाई ये मुझे बहुत सस्ता मिल रहा है इसलिए मुझको खरीद लेना चाहिए, तो वो सस्ता मिल क्यों रहा है, तो इसलिए उसका भी एक हमें विश्लेषण जरूर करना चाहिए, राइट? ओके। हम जब अब होटल खरीदते हैं, मैं आपको अपनी नजरिए से बताता हूँ कि हम जब होटल्स खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं, राइट? एक सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि मैं जो होटल खरीद रहा हूँ वो लेजर डेस्टिनेशन में है या बिजनेस डेस्टिनेशन में, राइट? कोविड के बाद से जो एक व्यू है इंडस्ट्री में, वो ये है कि लेजर डेस्टिनेशंस पे तो बिजनेस जो है ऑलमोस्ट चलता रहेगा, इनफैक्ट अच्छा ही चलेगा गोइंग फॉरवर्ड, राइट? क्योंकि होगा क्या कि लोग जो विदेश जाते थे वो विदेश कम जाएंगे और देश में ही छुट्टियां मनाएंगे, राइट? तो इसलिए जो देश के लेजर डेस्टिनेशंस हैं, दे विल रिसीव अ लॉट ऑफ डिमांड, राइट? सिमिलरली देयर इज एडिशनली देयर इज अ लॉट ऑफ पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट कि देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत कि भाई दे आर प्रमोटिंग पीपल कि आप अपने देश की जगहें देखिए पहले बिफोर गोइंग टू और हेडिंग टू फॉरेन डेस्टिनेशन। अभी इंडियन होटल्स ने, जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स चलाते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम निकाला है, देखो अपना देश के गवर्नमेंट की विजन के अंडर ही, कि उनकी क्या है, उनके दे हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ताज ग्रुप वी ऑल नो दे हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने क्लस्टर्स बना दिए हैं कि भाई ये देखो अपना देश रिलीजियस है,
आप हमारे होटल्स हैं रिलीजियस सर्किट्स में, आप जाइए और इकट्ठे ये रिलीजियस सर्किट को कवर कीजिए। या माउंटेन सर्किट, आप हमारे शिमला में होटल है, यहाँ होटल है, वहाँ होटल है, आप जाइए हमारे होटल्स में रुकिए। या इट कुड बी बीच सर्किट, कि आप बीचेस में जाइए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर ये होटल अवेलेबल है और मुझे खरीदना है, तो क्या मैं चेन ऑफ होटल्स को रिप्रेजेंट करता हूँ या मैं एक स्टैंड अलोन होटल खरीदना चाहता हूँ, राइट। अगर मैं स्टैंड अलोन होटल खरीदना चाहता हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्यों खरीदेंगे होटल। पहली बात, इस इंडस्ट्री में जो स्टैंड अलोन बायर्स रहे या सेलर्स रहे, वो उनका कोई और बिजनेस होता था, कोई पेट्रोल पंप चलाता था, कोई कुछ और चलाता था, उससे उनको पैसा इकट्ठा हो जाता था, दे वांटेड टू इन्वेस्ट दैट मनी। तो विच इज़ अ बेटर वे टू पुट मनी, क्या चलो यार होटल खरीद लेते हैं, बिकॉज सिंपल बिजनेस है, आपका लिक्विडिटी कंज्यूम हो गई और आप उसके ऊपर आपको जो भी रिटर्न आ रही है यू आर हैप्पी। सो यू नो यू हैव नॉट बॉट दैट होटल एज्यूमिंग कि मुझे इसके ऊपर 10% की रिटर्न कमानी है, अगर मैंने 100 करोड़ रुपए लगाया तो मुझे साल का 10 करोड़ रुपए छूटना चाहिए। वो सब आपका विजन नहीं था, आपके पास ये था यार मेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मुझे ये मालूम नहीं है इसको कहाँ पे लगाना है, ये होटल सस्ता लगता है मुझे, बिक रहा है तो मैं लगा देता हूँ। हम उस वाले एस्पेक्ट में तो नहीं जा रहे, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जब भी अपना पैसा लगाएंगे सो यू ओ सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर सेल्फ कि भाई माई मनी इज वेल स्पेंड, ये मुझे ढंग का रिटर्न देगा, रिटर्न्स दें। तो सबसे पहली डिस्टिंक्शन तो कैलाश जी हम ये करते हैं कि बिजनेस सिटी में है या लेजर सिटी में है। बिजनेस सिटी पे हमारा अभी ये व्यू है कि इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, राइट, कॉर्पोरेट्स हैव रियलाइज्ड कि जितना भी हम ट्रैवल करते थे, हमारे एम्प्लॉयज ट्रैवल करते थे, उतना ट्रैवल शायद जरूरी नहीं है, राइट। पहले इनफैक्ट हम भी, एक मीटिंग होती थी बॉम्बे के अंदर, हम चले जाते थे कि भाई एक जा ही रहे हैं तो 2 मीटिंग्स और कर लेंगे, राइट, बट मीटिंग एक ही सेट हुई थी। Okay. अभी क्या हो रहा है, अब आप कह रहे हो यार बॉस, वन इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। मैं इवन बॉम्बे जाने के लिए मुझे 2 घंटे की फ्लाइट लेना, उससे पहले 1 घंटा ट्रांजिट में घर से वहाँ, फिर वहाँ से मीटिंग में, तो वन वे मुझे 4 घंटे लगते हैं, सिमिलरली अनदर वे मुझे 4 घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे इन अ डे इज जस्ट वेस्टेड इन अटेंडिंग 1 or 2 मीटिंग्स इन बॉम्बे। तो अब लोग इसमें डिस्क्रिशन स्टार्ट एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे कि यार हमें ट्रैवल जरूरी कितना है, क्या हम ये काम वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, यू नो इज इट एज इफेक्टिव। हाँ, अगर मुझे ट्रैवल जरूरी ही है, मुझे फिजिकली डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, बायर और सेलर दोनों बैठेंगे आमने सामने, डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, वो तो फिर फिजिकली हो सकता है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो बिकॉज कॉर्पोरेट ट्रैवल विल गेट इम्पैक्टेड, बिकॉज एवरीवन इज थिंकिंग लाइक दिस, तो बिजनेस होटल्स के ऊपर एक इम्पैक्ट आने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, और वो हम देख भी रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये कहना कि यार ये होटल सिटी में था, चेन्नई में था, ये होटल पहले 5,000 रुपये कमरा इसका बिकता था, राइट, और अगर 100 कमरे थे तो इसके किसी भी टाइम पे 70-80 कमरे ऑक्यूपाइड रहते थे, आज वो ऑक्यूपाइड नहीं है, राइट। तो और यू नो ये बिजनेस इसलिए सस्ते में बिक रहा है, मुझे खरीद लेना चाहिए, बट यू मस्ट बी कॉन्शियस कि ये वाला ट्रेंड बहुत इमीडिएटली चेंज होने वाला नहीं है, राइट। क्योंकि सेलर ये व्यू ले रहा है कि यार ये ट्रेंड अगले 2-3-4 साल रहेगा और मेरे अंदर ताकत नहीं है ये नुकसान उठाने की, इसलिए वो बेच रहा है, राइट। अब आपको अगर ये लगता है कि यार मैं ये ठीक है, दिस इज अ एक्सीलेंट एसेट, ग्रेट लोकेशन, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। अगर आपको लोकेशन सूट करती है, यू नो प्राइस लोकेशन से ही निकलता है, बिकॉज लोकेशन के हिसाब से ही डिमांड आती है कस्टमर्स की, लोकेशन के हिसाब से आपके पास फुटफॉल्स आते हैं। तो लोकेशन अगर ठीक लगती है, आपके पास ये विजन है कि यार 2-3 साल का मैं लॉस उठा सकता हूँ, चौथे साल से यहाँ पर बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, और उस बेसिस पे मैं इसमें पैसा लगा रहा हूँ, बिल्कुल अपने को पैसा लगाना चाहिए। लेकिन हम और जो प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताता हूँ जहाँ पर चीज़ें रुक जाती हैं, जो सेलर होता है, सेलर हमेशा ये देखता है कि भाई आज मेरी ज़मीन की कीमत इतनी है, बिल्डिंग की कीमत इतनी है, तो आप मुझे इस हिसाब से पैसे दे दीजिए, राइट। हमारा उसके अंदर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि भाई हमें बिल्डिंग की कीमत से या लैंड की कीमत से कोई सरोकार नहीं है, हमें ये देखना है कि हम इस एसेट से कमा क्या सकते हैं। अगर मैं इस एसेट से 5 साल बाद, जब ये एसेट सारा कोविड रिस्क निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया, एसेट स्टेबलाइज हो गया, मैं साल के सिर्फ 2 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ या 3 करोड़ रुपए की प्रॉफिट कमा सकता हूँ,
राइट? तो मैं आपको अगर आज 100 करोड़ रुपए दे रहा हूँ एसेट खरीदने के लिए, तो मैं तो 2% की रिटर्न कमाऊंगा, 3% की रिटर्न कमाऊंगा, विच इज लेस देन बैंक एफडी रेट। फिर तो मेरे पास आ रहेगा 100 करोड़ रुपए, तो मैं एफडी में डाल दूं ना। मैं 2-3% की रिटर्न कमाने के लिए पैसा थोड़ी ना डालूंगा अपना, राइट? तो हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो हमारा यही रहता है कि यार इस पैसे का ऑल्टरनेट यूज ये है, मैं बैंक में डाल सकता हूँ, मैं बॉन्ड्स में डाल सकता हूँ, मुझे 7-6% 7% रिटर्न वहां से मिल जाता है। अब मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ कि मैं अपनी कैपिटल होटल में डाल रहा हूँ, जहां पर फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वहां तो मुझे निश्चित 6 या 7% रिटर्न मिलने वाली है। ठीक है, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है मुझे कम से कम 10% 11% तो मिले रिटर्न। तो उस हिसाब से मैं प्राइस करता हूँ अपने आप को, राइट? तो ये एक ना बड़ा हम समझ नहीं पाते, क्योंकि जब हम अपने 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 रिस्पेक्टिव बिजनेसेस सबको समझ में आते हैं। जैसे आप मुझे अगर टेक्सटाइल के बारे में बात करें, तो जो टेक्सटाइल के बिजनेस में जो लगे हुए हैं पिछले 20 30 40 50 साल से, जो उनके बिजनेस की निटी-ग्रिटीज हैं वो हमें नहीं पता होंगी, राइट? आप कार्डियोलॉजी फील्ड में हैं, आप शायद 2 या 3 टर्म्स बोलेंगे तो आई विल हैव टू लुक फॉर अ डिक्शनरी और गूगल की भाई ये क्या बोल दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट? सो हर बिजनेस के अपने नुएंसेस होते हैं। सिमिलरली जैसे हम M&A का बिजनेस करते हैं, करते आ रहे हैं, तो हमें उस बिजनेस के नुएंसेस मालूम है, राइट? और हमेशा खरीदने बेचने में एक चीज का ध्यान अपने को जरूर रखना चाहिए कैलाश जी, हम खरीदते समय जितना केयरफुल हो सके हमें उतना केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज बिजनेसेस खरीदना जो है इन्वॉल्व लार्ज चेक्स, राइट? जितनी शायद आपकी नेटवर्थ है उतना ही बड़ा आपको कोई दूसरा बिजनेस खरीदना पड़ता है। तो वन रॉन्ग डिसीजन कैन कॉज अ लॉट ऑफ मिजरी। और मैं ऑडियंस के साथ ये भी शेयर करना चाह रहा था कि जब हम बिजनेसेस खरीदते हैं या बेचते हैं, इनफैक्ट बेच गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यू हैव जस्ट सोल्ड इट, द ओनली थिंग फॉर यू टू रिपेंट इज कि यार मैंने 100 में बेचा था, वो 200 का हो गया, 150 का हो गया, दैट्स द ओनली डिसीजन विच यू कैन रिपेंट। बट अगर आपने बिजनेस खरीद लिया है, खरीदने के बाद क्या चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, राइट? कल्चरल मिसफिट्स। आपने बिजनेस खरीद लिया, आपकी जो मैनेजमेंट टीम का स्टाइल है या जो बिजनेस आपने खरीदा उसकी मैनेजमेंट टीम का स्टाइल है, दो स्टाइल्स डू नॉट मैच। दैट्स वन बिग इशू इन बाइंग बिजनेसेस। इस सिचुएशन में आपको आपकी पीपल पॉलिसीज बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस चला तो लोग ही रहे हैं। तो you have to make sure that people stay, people work with the same amount of commitment as they were working earlier. तो HR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है बिजनेसेस खरीदने के बाद। सिमिलरली चीजें कहाँ पे गलत होती हैं, एक हम टर्म यूज करते हैं ड्रेसअप फॉर सेल बिजनेस में। तो ड्रेसअप फॉर सेल का मतलब ये होता है कि भाई मेरा बिजनेस वैसे तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे उसे बेचना है तो मैंने उसको ड्रेसअप कर दिया है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे दिखे, उसका प्रॉफिट अच्छा दिखे, राइट? तो ताकि जो खरीदार आए वो अट्रैक्ट होए और अट्रैक्ट होके एक अच्छी वैल्यू दे। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि आपको अपनी गाड़ी बेचनी है और गाड़ी में डेंट पड़े हुए थे, तो आप मैकेनिक के पास भी डेंट ठीक कर दो, राइट? एंड यू टेल द बायर कि साहब ये गाड़ी का तो कभी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, राइट? सो इट इज काइंड ऑफ ड्रेसिंग अप फॉर सेल। तो ये सब चीज़ों में बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है जब आप बिजनेस खरीदने जा रहे होते हैं। तो अब मैं ना जो आपका ये सारे मैंने एक्चुअली थोड़े हाउ वाले क्वेश्चंस भी आंसर कर दिए कि इफ व्हाई इज आंसर्ड देन हाउ डू वी गो अबाउट डील मेकिंग, राइट? तो ये आप बिकॉज आप इस फील्ड से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, बट ये बहुत इवॉल्व इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर आज, द हाउ ऑफ डील मेकिंग, राइट? इसमें मल्टीपल एडवाइजर्स हैं, जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी बोलते हैं, राइट? मल्टीपल लोग हैं, और ये लोग नॉर्मली लॉयर्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, MBAs हो सकते हैं, राइट? इनका स्केल छोटा हो सकता है, इनका स्केल बड़ा हो सकता है। जो बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स हैं लाइक EY, PwC, Deloitte, KPMG, ग्रांट थॉर्नटन, ये जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं ये सारा काम करती हैं मिड स्केल बिजनेसेस का, बड़े बिजनेसेस का। आपके जो CA हैं, he could also help you with this kind of service.
इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच है, जेपी मॉर्गन है, सिटी बैंक है, इस तरह के बैंक्स भी ये काम करते हैं, बट ऑब्वियसली फॉर बिगर साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेसेस। तो एक तो ये हाउ का एक ये कंपोनेंट है कि भाई आपको एक एडवाइजर, अगर आप बिजनेस बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, आपको एक एडवाइजर इन्वेस्टमेंट बैंकर चाहिए हु अंडरस्टैंड्स द मार्केट, और उसे ये मालूम है कि अगर आपको खरीदना है तो कौन कौन बेचने वाला है, क्योंकि उसकी पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आती रहती है कि शायद पुणे में वो बिजनेस बेचने के लिए तैयार हैं, या कलकत्ता में वो बिजनेस बेचने के लिए तैयार हैं, चेन्नई में वो बिजनेस बेचने के लिए तैयार हैं। तो वो आपको इस सर्च में हेल्प करते हैं, राइट? ओके। और अगर आप बेचने वाले हैं तो भी आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प करता है, क्योंकि वो आपको ये बताते हैं कि भाई हाँ, हमें मालूम है कि XYZ खरीदने में इंटरेस्टेड है, राइट? तो सबसे पहला एस्पेक्ट हो गया टू आइडेंटिफाई एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दूसरा एस्पेक्ट जो आपने शुरू में भी टच अपॉन किया, मल्टीपल टाइम्स आपने टच अपॉन किया था, वैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस प्राइस पे बेचूं या किस प्राइस पे खरीदूं, राइट? और डील्स में सबसे ज्यादा जो बात टूटती है या डील्स नहीं होती, वो वैल्यूएशन गैप्स की वजह से ही नहीं होती है, क्योंकि बायर और सेलर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वैल्यूएशन लेके बहुत डिफरेंट होती है। दिस इज अनलाइक लिस्टेड कंपनीज। अब लिस्टेड कंपनीज में तो आपको मालूम है यार, एक भाव के ऊपर अगर आईसीआईसीआई का शेयर आज 700 रुपए का है, तो एक दिन में 700 रुपए पे लाखों करोड़ों शेयर्स बिकते हैं और लाखों करोड़ों शेयर्स खरीदे जाते हैं। तो मार्केट बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करती है। लेकिन प्राइवेट ट्रेड जब होता है, राइट, और 100% बेच रहे हो, तो यू नो इट्स नॉट दैट ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट्स नॉट अ लिक्विड मार्केट। तो इसमें साइंस और आर्ट दोनों आ जाती है। साइंस इसलिए क्योंकि देयर आर एस्टैब्लिश्ड वैल्यूएशन टेक्निक्स कि हम बिजनेसेस को कैसे वैल्यू करें, राइट? और इनके ऊपर ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें इस कॉल पे ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा, बट वैल्यूएशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैप्टर एंड इट्स अ साइंस। ओके। लेकिन नेगोशिएशन इज एन आर्ट। अगर आपने कभी यहाँ पे जितने भी सुनने और देखने वाले हैं, ये दिन भर धंधे में नेगोशिएट करते हैं, राइट? अगर वो गारमेंट्स बेचते हैं तो वो लेडीज आती हैं उनके शॉप पर, वो 10 रुपए 20 रुपए का मोल भाव करती हैं, ये मोल भाव करते हैं, डील कहीं ना कहीं पे सेटल हो जाती है, राइट? सो नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, ये जो भी कह लीजिए, ये एक आर्ट है। इसके पीछे कोई बहुत हम साइंस यूज करते हैं, नंबर्स की साइंस यूज करते हैं टू जस्टिफाई my asking price or my offer price, right? But जो final act of closing a deal है, वो you know it's just like an artist. You know, someone can just walk away from the table and say यार मुझे नहीं डील करनी। कोई आदमी बिल्कुल कोशिश करेगा कि डील होए। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की बड़ी अच्छी स्किल होती है, बिकॉज देयर मनी इज ओनली मेड इफ द डील हैपेंस, राइट? अगर डील नहीं होती तो उन्हें पैसे नहीं मिलते। तो you know they're very intelligent people, you know, who stitch deals or stew deals। इतनी बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, वो कैसे स्टिच होती हैं? the people behind it, right, who understand the seller buyer nuances to strike a deal। तो एक एस्पेक्ट हमने वैल्यूएशन का बात कर लिया, एक एस्पेक्ट हमने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लगते हैं, लॉयर्स लगते हैं, अकाउंटेंट्स लगते हैं, you know, उनका बात कर लिया। एक थर्ड एस्पेक्ट और है, एंड माय लास्ट एस्पेक्ट ऑन हाउ ऑफ दिस इज ड्यू डिलिजेंस। एक ये भी बड़ी कॉमन टर्म होती है डील मेकिंग के अंदर, कि जो भी खरीदार होता है, राइट, वो बेचने वाले के बिजनेस को बहुत अच्छे से और गहरा अध्ययन करता है, जिसको हम ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। और ये ड्यू डिलिजेंस केवल आपकी अकाउंटिंग बुक्स का नहीं होता, ये आपके डॉक्यूमेंट्स का होता है, ये आपके टेक्निकल प्लांट्स वगैरह का होता है। भाई आप जितनी कैपेसिटी बोल रहे हो उतनी कैपेसिटी है भी कि नहीं, आप जितनी मशीनें बोल रहे हो कि जितनी पुरानी है जितनी नहीं है उतनी है भी कि नहीं, राइट? जिस एफिशिएंसी से आपकी मशीनें चल सकती हैं उतनी एफिशिएंसी चलती हैं कि नहीं चलती हैं। तो इन सब का एक बहुत गहरा अध्ययन होता है जब आप ये इन्वेस्ट करने की या खरीदने बेचने की बात आती है। तो नाइस अमित जी। अच्छा, अभी एक लास्ट क्वेश्चन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, एंड इट्स जस्ट माय पर्सनल थॉट एज वेल। अभी जो आप बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली व्हेनेवर वी वांट टू स्ट्राइक अ डील,
we should involve a third party like an investment banker or some agency, whoever is doing with that work. So what is the kind of professional fee that ideally we are supposed to pay, or is it working on some percentage basis or something? One, and in the same aspect, my second doubt is कि how do we understand? See, as you said, investment banker का तो क्या काम है, जब वो डील होगी तभी उनको पैसा बनेगा. So they will do all the positive things to close the deal. तो वो किसके फेवर में है? अभी मैं बायर हूँ, whether he'll be in my favor or whether he'll be in the seller's favor, ये कैसे मुझे पता चले? और how do I decide कि हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो बता रहा है वो सही है and I should go ahead with this deal? तो ये दोनों एस्पेक्ट से क्या, what is the ideal professional fee? तो आपका सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर रेजिंग दैट. देखिए, फी वाले क्वेश्चन पहले, इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर दोनों पार्टीज का अलग अलग होता है, राइट? और वो इसी वजह से अलग होता है क्योंकि उसको किसके इंटरेस्ट का ख्याल रखना है. उसको बायर के इंटरेस्ट का ख्याल रखना है कि उसको सेलर के इंटरेस्ट का ख्याल रखना है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव योर ओन एडवाइजर ऑन द ट्रेड. तो अब आता है कॉस्ट क्या आते हैं. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो एक बिजनेस है वो ऐसे वर्क करता है कैलाश जी, इसमें बहुत नॉमिनल फिक्स्ड फी होती है, राइट? क्योंकि उन्हें भी अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना होता है, उनके भी अपने खर्चे होते हैं. बट लार्ज पार्ट ऑफ द फी इज लिंक्ड टू द सक्सेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, राइट? और नॉर्मली ये 1.5 से 3% के बीच में होती है. तो सपोज कीजिए आपने 100 करोड़ रुपया रेस कराया किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर ने आपके लिए, तो वो आपसे 1.5% या 2%, 1.5-2 करोड़ की फीस ले लेगा. ओके, राइट. बट वो सारे प्रोसेस में आपको हैंड होल्ड करते हैं कि आपका अगर आप बेच रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट कैसा बनना चाहिए, आपकी वैल्यूएशन क्या लेके जानी है, किन इन्वेस्टर्स के पास जाना चाहिए, उन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में आपको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर पूरी आपकी जो डील फाइनलाइज कराते हैं. जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तब आप उन्हें पैसे देते हैं. ओके, राइट. ओके, नाइस Amit ji. I mean, I think we had a very good session and very nice of you being here and trying to explain each and every aspect. I'm sure audience के लिए बहुत ही useful session रहा होगा. काफी कुछ सीखा है इस डील मेकिंग कॉन्सेप्ट और डील मेकिंग क्या है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, उसको कैसे समझा जाए और कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं. I think a lot of things you have thrown light on all the aspects. Thank you very much, Amit ji. Thanks a lot for this entire session, and thank you to JBN, thank you to JPF, and thank you to Jito on the whole. Thank you so much. थैंक यू कैलाश जी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आई थिंक यू आर अ एक्सीलेंट मॉडरेटर. आपने बहुत कमिंग फ्रॉम अ फील्ड व्हिच इज एब्सोल्युटली अनरिलेटेड टू फाइनेंस एंड बिजनेस, आपने बड़े रेलेवेंट सवाल पूछे. आई एम थैंक यू. एंड आई थिंक these are the questions which even the audience would have expected to ask. So thanks to you and thanks to Jito, and audience में बैठे सभी लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार. Thank you, Jai Jineन्द्र.